السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ماجد رشید صاحب۔ ڈاکٹر ماجد رشید صاحب نے علوم اسلامیہ کو بھی حاصل کیا اور علوم عصریہ کو بھی حاصل کیا، اور اسی طریقے سے علوم اسلامیہ کے اندر بھی آپ کی بہت عالی خدمات ہیں اور علوم عصریہ کے اندر بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ آپ نے کہاں سے علوم اسلامیہ کو حاصل کیا، پھر کہاں کہاں خدمات کی، اسی طریقے سے علوم عصریہ کو کہاں سے حاصل کیا، کہاں کہاں خدمات سر انجام دی، اور اس وقت حضرت کس یونیورسٹی کے اندر ہیں وہ ہم جانیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خدمات تالیف کی دنیا میں ہیں، کون کون سی کتب آپ نے لکھی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کر امت مسلمہ کے لیے ورکشاپس کا انعقاد کیا اور ان کی رہنمائی کی، تو وہ ٹریننگ سینٹر اور وہ ورکشاپس، وہ خدمات کیا ہیں، اسی طریقے سے رفائی خدمات آپ کی کیا کیا ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آنے والی ہیں، تاکہ ہم ان کی اس محنتوں سے، ان کاوشوں سے استفادہ کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مدرسہ ڈاٹ پی کے کو تھوڑی دیر کے لیے وقت دیا اور آپ ہمارے اسٹوڈیو میں حاضر ہوئے۔ الحمدللہ، میرے لیے بھی سعادت ہے کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر مجھے آنے کا موقع ملا۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا مختصر تعارف کروائیے گا کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟ میرا نام ڈاکٹر ماجد رشید ہے اور میرا آبائی علاقہ ضلع رحیم یار خان ہے اور وہیں پر میری پیدائش ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے علوم اسلامیہ کو بھی حاصل کیا دورہ حدیث تک، اور اس کے بعد پھر علوم عصریہ، تو کیا یہ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ علوم اسلامیہ آپ نے کہاں کہاں سے حاصل کیے؟ علوم اسلامیہ کے لیے میں نے سب سے پہلے آئی سی ایس کرنے کے بعد خواجہ ملتان کے اندر خیر المدارس، وفاق المدارس کا ادارہ ہے، جامعہ خیر المدارس، وہاں مجھے 9 سال پڑھنے کا موقع ملا، اور وہاں پر میں نے 9 سال میں 8 سال میں شہادت العالمیہ کی، اس کے بعد 1 سال تقابل دیان کیا، اور اسی طرح پاکستان کے جید علماء جن میں مولانا ضرب علی خان صاحب ہیں، اسی طرح علامہ علی شیر حیدری صاحب، اور اسی طرح مولانا حکیم اختر صاحب، ان حضرات سے بھی مجھے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، کیا آپ نے دورہ حدیث کے ساتھ ساتھ ہی اپنی جو عصری تعلیم ہے اس کو شروع کر دیا تھا یا بعد میں شروع کیا؟ عصری تعلیم میں نے آئی سی ایس انٹرمیڈیٹ کمپیوٹر سائنس عالم بننے سے پہلے شروع کیا۔ آئی سی ایس کے بعد میں جامعہ خیر مدارس میں گیا، تو پہلے تو میرا ویژن یہ تھا کہ 6 سال تک میں نے اب دینی تعلیم پڑھنی ہے، علوم دنیاویہ کو نہیں پڑھنا، لیکن جب 6 سال بعد میں نے دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے اور پھر پڑھ رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ میں نے اس کو سٹارٹ لیا، اور پھر ساتھ ساتھ میں نے شہادت العلمیہ کے بی اے کیا، ایم اے اسلامی اسٹڈی کیا، بی ایڈ اور ایم ایڈ بھی ساتھ کیا، اے ٹی ٹی سی کی، اور اسی طرح میرے دینی علوم مکمل ہوئے، ساتھ پھر تدریس کا آغاز کیا، اور پھر باقی علوم ایم ایس اور پی ایچ ڈی، اور ابھی میرا پوسٹ ڈاک میں الحمدللہ ایڈمیشن ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایم فل اور پی ایچ ڈی یہ کب سٹارٹ کیا تھا اور کس یونیورسٹی سے سٹارٹ کیا تھا؟ ایم فل میں نے 2014 میں سٹارٹ کیا تھا، این سی بی اے ای ادارہ ہے لاہور کے اندر، اس کی برانچ رحیم یار خان میں تھی۔ 2014 سے لے کر 16 تک کا میرا بیچ تھا۔ ان 2 سالوں میں نے ایم فل کیا اور ساتھ ٹیچنگ سٹارٹ کر دی تھی، تدریس۔ پھر 2018 میں نے کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی سٹارٹ کی، اور 3 سالوں میں الحمدللہ 2021 کے اینڈ میں میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی، اور ابھی میرا حال ہی میں پوسٹ ڈاک کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کن کن یونیورسٹیز کے اندر ابھی تک آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ آپ بتا رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی آپ کی ابھی 2021 میں مکمل ہوئی ہے، تو اس سے پہلے یونیورسٹیز میں ساتھ ساتھ پڑھاتے رہے آپ؟ اس سٹارٹ میں نے لیا تھا، ایک پرائیویٹ ادارہ تھا، ساتھ تدریس کرتا تھا ایک مدرسے کے اندر، دینی علوم پڑھانے کا موقع ملا، ساتھ اسکول سے آغاز لیا، پھر آرمی پبلک اسکول ہے، پورے پاکستان میں ایک برانچز ہیں اس کی، آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج میں پڑھانے کا 4 سال موقع ملا۔ اس کے بعد میری گورنمنٹ جاب ہو گئی تھی ایز اے ای ایس ٹی، تو پھر گورنمنٹ جاب کے ساتھ ساتھ میں آگے پڑھتا بھی رہا اور آگے کے لیے کوشش بھی کرتا رہا۔ 2018 میں میری جاب بطور اے ٹی عربک ٹیچر کے طور پر ہوئی تھی،
اور 2018 کے اندر نومبر کے اندر میری جاب یونیورسٹی خواجہ فرید یونیورسٹی میں 2018 میں ہو گئی تھی، اور اب مجھے وہاں 5 سال ہو چکے ہیں تقریباً۔ الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو مقالہ تھا، اگر ایم فل کی میں بات کروں، اس کا کیا عنوان تھا، یا پی ایچ ڈی کی بات کروں؟ ایم فل میں نے کام کیا تھا اتحاد امت پر، اتحاد امت میں حجازی اور عراقی علماء و مفکرین کا کردار۔ ماشاء اللہ جو ڈاکٹر دو صاحب، مقالے یہ تو بہت ہی بہترین موضوع ہے، اور اس موضوع کو تو امت کے سامنے لانا، اور بڑی محنت آپ کو اس پہ کرنی پڑی ہوگی۔ میں نے یہاں پر اس فقہ کی کتابوں کو زیادہ مطالعہ کیا، اور اس میں نے 2 بڑے مکاتب فکر کے اصولوں کو لیا، تو جو متحدہ اصول تھے وہ بہت زیادہ تھے، تو ان اصولوں کی روشنی میں بات کو آگے بڑھایا کہ ہماری جو متحد چیزیں ہیں ائمہ کرام کی دین کے اندر وہ زیادہ ہیں، اور قرآن بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، پہلے اس چیز کی طرف آؤ جس کو سارے مانتے ہیں، جب ان چیزوں پر عمل کرنے لگیں گے پھر باقی چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو اتحاد کے اندر میں نے یہ بھی واضح کیا کہ اتحاد کا مقصد یہ نہیں کہ اپنے نظریات کو چھوڑ دینا، یعنی دوسرے کی بات کو سننے کا حوصلہ بھی ہو، اور تحقیق ایک اچھی چیز ہے، علماء کے اندر اگر اختلاف ہے تو ایک رحمت ہے، جب اس اختلاف کو عوام کی طرف چلا جائے، جو لوگوں کو اس کا نالج پرسن نہیں ہے، جب وہ اس میں اختلاف کریں گے پھر یہ زحمت بن جاتا ہے، اور یہ فرقہ واریت کی طرف چیز لے جاتی ہے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ یہ فرما رہے تھے کہ تمام فرقوں کے اندر مختلفات اگر دیکھے جائیں اور دوسری طرف مشترکات دیکھے جائیں، تو مشترکات تقریباً زیادہ ہیں مختلفات کے مقابلے میں۔ تو اگر ہم مختلفات کو چھوڑ کر مشترکات کو لے کر چلیں، اور اس میں جو چیزیں ہمارے درمیان کامن ہیں ان کے اوپر محنت کریں، تو میرے خیال سے وہ مختلفات جو ہیں وہ ان کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ تو بال- یہ تو آپ کی بہت بڑی کاوش رہی۔ تو یہ ایم فل کا مقالہ آپ فرما رہے ہیں؟ جی جی، ایم فل کے اندر، اور قرآن پاک کی بھی یہ تعلیمات، جاؤ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، قرآن بھی یہ کہتا ہے پہلے اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارا مشترک ہے، تو جب مشترکات پر عمل کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ لگے گی، اور ہمارے اندر وسعت پیدا ہوگی، اور عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ پی ایچ ڈی کے اندر پھر آپ کا مقالہ وہ کس موضوع پر تھا؟ اس سے کوئی ملتا جلتا تھا یا اس سے کوئی ڈفرینٹ تھا؟ پی ایچ ڈی میں نے پھر الاصابہ پر حدیث پر کام کیا ہے۔ الاصابہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، جو اصل میں بیسک کتاب اسماء الرجال کی ہے، تو میں نے اسے ایک نیا نقطہ نظر سے کام کیا۔ ایک تو یہ کام کیا کہ اسماء الرجال اصل میں حقیقت میں کتاب صحابہ کی زندگی کے بارے میں ہے، لیکن ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جب صحابی کی صحابیت ثابت کرتے ہیں تو اس کی دلیل میں کوئی نہ کوئی روایت ضرور ذکر کرتے ہیں کہ پیارے نبی سے فلاں موقع پر انہوں نے یہ روایت نقل کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیارے نبی کے صحابی ہیں۔ تو میں نے کہا صحابی ہونے کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ پیارے نبی کا یہ فرمان بھی ہے، تو پیارے نبی کی سیرت کے بارے میں احکام فضائل کی بہت ساری روایات وہاں موجود تھی، تو میں نے ان روایات کو اکٹھا کیا، پھر ان روایات کی تحقیق کیا، آیا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ روایت کو ذکر کرتے ہوئے صرف صحابیت ہی مقصد ہے، یہ روایت کی اتھینٹسٹی کو بھی دیکھتے ہیں، تو میں نے روایات کو لیا اور پھر اس پر ایک نئے انداز سے میتھمیٹیکلی اسٹیٹکس کے اعتبار سے کام کیا ہے۔ میں نے ہر روایت کو آخر میں اس کا مجموعی جائزہ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ پورے ذخیرہ حدیث میں مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات ایک روایت ہے، ٹوٹل ذخیرہ حدیث میں اس کی اسناد کتنی ہے، یعنی مثال کے طور پر 1250 ہیں، ماشاء ان اللہ۔ 1250 اسناد موجود تھی، پھر 1250 اسناد میں یہ بھی بیان کیا 50% اسناد یعنی 625 اسناد جو ہیں جو علماء کے ہاں صحیح ہیں، اتنے پرسنٹ ضعیف ہیں ان کی تعداد اتنی ہے، اتنے پرسنٹ حسن ہے ان کی تعداد اتنی ہے، تو یہ بھی ایک کام کیا میتھمیٹیکلی انداز سے بھی کیا، جو یہاں پاکستان میں پہلے کام نہیں ہوا تھا یہ بات۔ ڈاکٹر صاحب، پھر تو آپ کو کسی بہت بڑے جامعہ کے شیخ الحدیث ہونا چاہیے، حدیث کے ساتھ اتنا شغف آپ نے رکھا۔ تو کیا کہیں آپ کو حدیث پڑھانے کا بھی موقع ملا؟ الحمدللہ جب میں نے مدرسہ سے فارغ ہو کر آیا تو الحمدللہ بنات کے مدرسہ میں ادارہ تعلیم البنات عربی کالج ہے، ساتھ مدرسے کا انتظام ہے، وہاں ابو داؤد شریف پڑھانے کا موقع ملا، میراث پڑھانے کا موقع ملا، اور ابتدائی کتب پڑھانے کا موقع ملا، لیکن مدرسے کے ساتھ اسکول کی مصروفیات کے اضافہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر یونیورسٹی کے اندر بھی میں نے دین علوم اسلامیہ کو بھی پڑھایا، یعنی ہم نے بی ایس اسلامک اسٹڈی اسٹارٹ کی، ایم فل اسلامک اسٹڈی اسٹارٹ کی، تو اس میں ہم نے عربک کو رکھا، صرف نحو کو رکھا، عربی گرامر کو رکھا، عربی کے مختلف کورسز رکھے، یعنی انہی چیزوں کو میں یونیورسٹی کے اندر لے کر آیا کہ مدرسے کی طرح یونیورسٹی کے طلباء کو بھی پڑھایا جائے، ان کی بھی تربیت کی جائے۔ پھر میں نے حدیث پر ایک کتاب لکھی التنعیم
फी उलूमिल हदीस, ये किताब भी फिर हदीस पर लिखने का एक मौका मिला जो एमफिल के स्टूडेंट को पढ़ाई जा रही। अच्छा, अत-तनईम फ़ी उलूम अल-हदीस किताब माशाल्लाह आपकी आपने नाम लिया, तो ये उर्दू में है या किसी दूसरी ज़ुबान में? उर्दू के अंदर किताब है, उर्दू में किताब है और इसमें अहादीस को ज़िक्र किया गया। अहादीस के जितने उसूल हैं, जितने मुबादियात हैं और उसूल हदीस को मुकम्मल तफ़सील से यहाँ बयान किया गया है। अच्छा, और सिर्फ़ इसमें जी, सिर्फ़ जी, उसूल हदीस को ही आपने इसमें लिखा, या इसके अलावा जो आपने कुछ अस्मा और रिजाल की भी कुछ मोटी-मोटी जो पैरामीटर्स हैं, इस्तिलाहात हैं, वो भी ज़िक्र की? मुख्तसर अंदाज में मुख्तलिफ चैप्टर्स में उसको पेश किया, जिस तरह के एमफिल के सिलेबस होता है ना, करिकुलम होता है, उन करिकुलम को सामने रख के, यानी उसमें जमा और तदवीन को भी लेकर आया, हदीस की इब्तिदाई चीज़ों को भी लेकर आया, कुछ अहादीस को भी लेकर आया, अहादीस के उसूलों को भी लेकर आया, मौज़ू हर तरह की रिवायात को भी ज़िक्र किया कि उनके उसूल क्या हैं। फिर एक इसमें अच्छी चीज़ है कि जिस मौज़ू पर भी आपको किताब यानी मौज़ू आप पढ़ते हैं मरफ़ू हदीस, अब मरफ़ू हदीस के हवाले से किन-किन कुतुब में आपको मरफ़ू अहादीस मिलेंगी, उन कुतुब के हवाले भी लिखे कि इन किताबों में मरफ़ू हदीस मिलेगी, इन बुक्स के अंदर आपको हसन हदीसें मिलेंगी, इन बुक्स में आपको ज़ईफ़ हदीसें मिलेंगी। उन बुक्स हुँ। के भी रेफ़रेंस दिए, तो ताकि ये आगे आने वालों के लिए मुफ़ीद हो सके। बहुत-बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फ़रमाए। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अच्छा, जो आप फ़रमा रहे हैं कि इस किताब को हम एमफ़िल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हदीस को समझने का या इल्म हदीस के बारे में इतना ज़्यादा शौक और शग़फ पाया जा रहा है? एमफिल के स्टूडेंट में अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास जो ज़्यादा तलबा कराम आ रहे हैं, उलमाए कराम हैं। तो यानी मेजॉरिटी उलमाए कराम की हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। उलमाए कराम इस तरफ मुतवज्जिह हो रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, तो उलमाए कराम के लिए समझना ज़रा आसान है। तो जो तलबा कराम स्कूल एजुकेशन से आते हैं, उनके लिए ज़रा मुश्किलात का सामना है, लेकिन उनको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो उलूमुल हदीस एमए इस्लामिक स्टडी में पढ़ चुके होते हैं। तो कुछ चीज़ों का उन्हें इल्म होता है, मज़ीद उसको आगे निखारने के लिए वो पढ़ते हैं और फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है तलबा को। माशाअल्लाह, इसके अलावा अभी चूँकि बात चल पड़ी है, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसके अलावा आपकी किस-किस उन्वान के ऊपर तालीफ़ात हैं? सबसे पहली किताब मैंने यूनिवर्सिटी में जाकर पहली किताब लिखी तारुफ़-ए इस्लाम। तारुफ़-ए इस्लाम बेशक ये किताब है जो बीएस इस्लामिक स्टडी के स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के एफ़िलिएट कॉलेजेस तकरीबन 40 एफ़िलिएट कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है और हमारी यूनिवर्सिटी में जो भी बीएस का प्रोग्राम 100 प्लस प्रोग्राम है, हर प्रोग्राम में इस्लामिक स्टडी पढ़ाई जाएगी। तो उसमें तारुफ़ इस्लाम में बेसिक चीज़ें हैं, यानी उसमें हर चीज़ को टच किया गया है। जिस तरह के एमए इस्लामिक स्टडी के अंदर 16 सब्जेक्ट्स हैं, तो हर सब्जेक्ट के हवाले से उसमें लेक्चर है। मिसाल के तौर पर पहला लेक्चर तारुफ़ कुरान के हवाले से है, तो कुरान से रिलेटेड उसमें चीज़ें बयान होंगी। फिर कुरान पाक का कुछ मतन दिया गया दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में हदीस का इंट्रोडक्शन है, चौथे लेक्चर में मुख्तलिफ 10 अहादीस दी गई हैं। इस तरह इन चीज़ों को इकट्ठा करके एक किताब तैयार की गई, तारुफ़-ए-इस्लाम। और फिर इसके साथ थर्ड सेमेस्टर में जो बीएस इस्लामिक स्टडी के स्टूडेंट को पढ़ाया था उलूमुल कुरान, फिर उस पर भी ये किताब लिखने का मौका मिला। फिर मैंने कुछ इश्यूज़ जो हमारे ज़माने के अंदर हैं, वालिदैन का अदब, अज़मत और हमारी जो कोताहियाँ उसमें हैं, एक नई चीज़ ऐड की कि वालिदैन की अज़मत तो कुरान और हदीस से बिल्कुल वाज़ेह है। तो हम उसमें कौन-कौन सी कोताहियों का शिकार हैं, जिसकी वजह से हम इस पर सही तरह अमल नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों को डिस्कस किया और इसी तरह एक किताब मैंने अज़मतुन निसा और तरबियतुन निसा, यानी हुँ। कि अज़मतुन निसा तो अच्छी चीज़ है, साथ तरबियतुन निसा में कुछ कड़वी चीज़ों को भी ज़िक्र किया, यानी जो हमारी मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं ख़वातीन में और उनकी इस्लाह ज़रूरी है। और कौन-कौन सी कोताहियाँ, कमियाँ हैं, उस पर भी लिखने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, वो किताब बहुत अच्छी है। और स्मैश वर्ल्ड यूरोप में एक अदारा है और मेरी सारी बुक्स ई-बुक्स में शाया हो चुकी हैं, क्योंकि स्मैश वर्ल्ड में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। तो मैंने देखा इस्लाम के बारे में बहुत कम कुतुब थी। तो मैंने हुँ। अपना हिस्सा डालने के लिए ज़्यादा किताबें वहाँ भेजी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप के अंदर अदारा है और 17 बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं दुनिया की, वहाँ पर वो बुक मौजूद है। लोग परचेज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह और भी बहुत सारी कुछ लिखने का मौका मिला। इल्म-ओ-सर्फ़ पर किताब लिखी, क्योंकि मैं बेसिकली आलिम दीन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इल्म-ओ-सर्फ़ और इल्म-ओ-नहव पर भी किताब लिखने का मौका मिला। तो इस तरह थोड़ा-थोड़ा हिस्सा मिला। ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर जब तलबा किराम को पढ़ाया जाता है, तो किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ाया जाए तो उसके लिए हमें नोट्स तैयार करना पड़ते हैं, मुख्तलिफ बुक्स को रीडिंग करना पड़ती है, नेट से मदद लेना पड़ती है। तो हमारे पास जो डाटा कलेक्ट होता है, अगर उसको जमा करते रहें और उसको प्रूफ रीडिंग करें और अच्छे अंदाज़ से सँवार लें, तो हमारी ये किताब अच्छे अंदाज़ से तैयार एक नए अंदाज़ से आपके सामने आ सकती है, जिससे तलबा किराम को फ़ायदा भी है और अवाम उन्नास के लिए भी मुफ़ीद हो सकती है।
माशाल्लाह आपने अपनी मुतअद्दिद कुतुब का ज़िक्र कर दिया और साथ ही ये एक आइडिया भी दिया कि जो हम दौरान तदरीस अपने नोट्स तैयार करते हैं, अगर उन्हीं नोट्स की प्रूफ रीडिंग करके उन्हीं को एक अच्छे अंदाज में मुरतब कर दिया जाए तो वो एक किताब की शक्ल बन जाती है। अच्छा माशाल्लाह, अगर एक मजमूई तादाद बता दें और मौज़ूआत बता दें या फ़नून बता दें कि इतने फ़नून पर इतनी किताबें मैंने लिखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त तक मेरी 10 किताबें हो चुकी हैं, जिसमें माशाअल्लाह। मैंने हदीस पर लिखने का मौका मिला, तफ़सीर पर लिखने का मौका मिला और अवामुन नास के मसाइल पर और मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर लिखने का मौका मिला। इसी तरह इत्तिहाद से इत्तिफ़ाक़ का सफ़र, जो मेरा एमएस का एमफ़िल का थीसिस था, उसी से रिलेटेड मैंने काम किया कि इत्तिहाद से इख्तिलाफ़ से इत्तिहाद का सफ़र कैसे हुआ और इसमें फ़ुक़हा किराम ने क्या किरदार अदा किया, उस पर भी कुछ लिखने का मौका मिला। तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखने में इसी तरह एक मेरी किताब जो हम 3 लोगों ने मिलकर लिखी, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो एमएस के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है कि रिसर्च के कौन से टूल्स हैं, रिसर्च किस तरह करनी चाहिए। तो बयानिया तहकीक क्या होती है, जो हमारी इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड चीज़ थी, वो भी उसमें कुछ काम करने का मौका मिला, ताकि हमारे लिए ज़रा तहकीकी काम उलमा कराम के लिए और तलबा के लिए ज़रा आसान हो और अच्छे अंदाज से वो नए टूल्स जो हमारे इस दौर में हैं, वो इस्तेमाल करना आ जाएँ। बल्कि एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि पीएचडी में जो मैंने थीसिस किया है, वो मैंने मेंडले में किया है और मेंडले जिससे अभी तक उलमाए कराम और एमएस इस्लामिक स्टडी के खास स्टूडेंट उसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैंने मेंडले को भी इस्तेमाल किया क्योंकि ये फ्यूचर में लोग इस्तेमाल करेंगे, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इसका वो थोड़ा-सा इस्तेमाल करने का मज़ीद इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कोई सॉफ्टवेयर है या क्या चीज़ है? मेंडले एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये कि आपने कोई भी थीसिस लिख तहकीकी काम करना, उसमें आप रेफरेंसेस देते हैं, उसमें आप मसादर और मराजे बनाते हैं। तो ये एक दफ़ा हवाला अगर किसी बुक का दे दें, तो कभी ज़िंदगी में मौका मिले आप उससे बुक का नाम लिखेंगे, पूरा रेफरेंसेस आपके सामने आ जाएगा, नीचे लिखा भी जाएगा। और आखिर में मसादर मराजे के लिए आपको सिर्फ़ एक बटन दबाना पड़ेगा, सारे के सारे मसादर मराजे आ जाएँगे। यानी एक आसान काम को करने के लिए। इसकी मैं मिसाल देता चलूँ कि हुँ। हमारे साथ एमफ़िल में एक स्टूडेंट थे। उन्होंने आयात को लिखना शुरू किया, एराब लगाना शुरू किए और साथ 10-12 स्टूडेंट भी लगा दिए। 2-3 महीने लगे रहे। मुझे आकर बताया कि मैं तो मुश्किल में पड़ गया हूँ। तो मैंने उन्हें बताया 2-3 महीने में जो 12 लोगों ने काम किया ना, अगर मैं अकेला करता तो ये 2 घंटे का काम था। क्योंकि हुँ, उन्होंने हुँ। टूल्स इस्तेमाल नहीं किए। मकतबा शामिला बच्चों को सिखाता हूँ। मकतबा शामिला हमारे उलमा कराम के लिए, इस्लामिक स्टडी के स्टूडेंट के लिए, अरबिक के स्टूडेंट के लिए बहुत मुफ़ीद चीज़ है। जिसमें सैकड़ों कुतुब हमारे सामने हैं। हमने उसमें सर्च करनी है और बड़ा डाटा हमें तैयार-शुदा मिल जाता है। हर चीज़ एराब वाली मिल जाती है। तो इन चीज़ों का अगर टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे लिए बहुत सारी तहकीक आसान हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपने तो माशाल्लाह छोटे-छोटे जो आइडियाज़ आप बता रहे हैं, साथ-साथ सॉफ्टवेयर्स का भी तारुफ़ हो रहा है। माशाल्लाह बड़ी ख़िदमात हैं। अभी-अभी आपकी पीएचडी मुकम्मल हुई है और इन चंद ही सालों के अंदर 2-3 सालों के अंदर आपका इतना बड़ा काम है, तो आगे चलकर अल्लाह ताला आपसे इंशाल्लाह मज़ीद भी काम इस मैदान के अंदर लेंगे। आपकी इंशाअल्लाह। सारी काविशें बड़ी ही तहसीन के काबिल हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा आपकी कुछ लेक्चर्स या कहीं पे कोई आपकी वो ख़िदमात की जो आपने अपनी चलो कलम से तो आपकी ख़िदमात का पता चल गया, लेकिन इस तरीके से आपकी कोई है कोई ऐसी वर्कशॉप्स या कोई ट्रेनिंग सेशंस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टूडेंट्स के साथ एमएस के 14 स्टूडेंट को सुपरवाइज़ कर चुका हूँ। यानी उनके थीसिस करवाए हैं। 6 स्टूडेंट बीएस के हैं, उनको थीसिस करवाए हैं। 8 स्टूडेंट को करवा रहा हूँ। और उसके साथ-साथ मैंने दूसरे कामों में एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक सोसाइटी कायम की है, कैफ़्यूट एथिक्स एंड टॉलरेंस सोसाइटी। इसका मैं एडवाइज़र हूँ। तलबा इकराम को ट्रेनिंग देता हूँ, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हम तलबा को सिखाते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स करवाते हैं। जिस तरह फ़हम दीन एक कोर्स तलबा कराम के लिए करवाया गया, जिसमें तलबा कराम की यानी उनको माशरे में जीना किस तरह है, उनके अकायद क्या होने चाहिए, बेसिक चीज़ें उन्हें सिखाई गई। तो तलबा कराम को हमारी बेसिक चीज़ों का नहीं पता। यूनिवर्सिटी में जो तालिब इल्म आता है, वो सफ़ेद शीशे की तरह है। उसका नॉलेज बहुत कम है। अगर उसको सही नॉलेज ना दिया गया, तो वो फिसलने के उसके ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मीडिया का ज़माना है, तो इन बच्चों की तरबियत हमने करनी है, इस काबिल बनाना है कि फ्यूचर के अंदर उन्हें कोई गलत रास्ते पर ना लगा सके। उनकी तरबियत के लिए कोर्सेज़ किए गए, मुख्तलिफ़ वर्कशॉप तलबा को करवाई गई और हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 40 प्लस मैंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स कराए तलबा की तरबियत के लिए, जिसमें असातिज़ा कराम ने भी शिरकत की और इसके साथ-साथ फिर हमने सोसाइटी के अंदर भी अपना किरदार अदा किया। तलबा कराम को सिखाया कि किस तरह उन्होंने अवाम-उन-नास में जाके खिदमत करनी है। तो उन खिदमात में अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी करीब ही रमज़ान मुबारक गुज़रा, पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह हमने 800 लोगों को इफ्तार करवाया।
اللہ ताला की मदद से हुआ। 30 वॉलंटियर तलबा कराम मेरे साथ खिदमत के लिए होते थे, तो हमने मिलकर 800 लोगों को पूरे रहीम यार खान में अफ्तार करवाया और मेहमानों की तरह करवाया, दस्तरखान लगाकर, बिठाकर, एज़ाज़ और इकराम के साथ तलबा की तरबियत की। अवाम-उन-नास को भी वहाँ पर तरबियत की कि मौका मिला, अवाम-उन-नास इकट्ठी होती थी, तो उन्हें कोई ना कोई अच्छी बात बताई गई, गाइड किया गया कि हमारे अंदर हमदर्दी आनी चाहिए, सब्र आना चाहिए, ईसार आना चाहिए, दूसरों के लिए हम मोहब्बत के जज़्बात पैदा होने चाहिए। तो इस तरह करवाया गया और खुद भी सीखता हूँ, जहाँ भी मौका मिलता है, कोई वर्कशॉप हो रही हो, तो उसमें शिरकत करता हूँ, क्योंकि इंसान को इल्म हासिल करते रहना चाहिए। माशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि जो रिसर्च आपने कुछ अगर की हों या कुछ कॉन्फ्रेंसेस की हों, तो उसका भी ज़िक्र हो जाए, ताकि हम उससे भी आगे चलकर भी इस्तिफ़ादा कर सकें या कुछ उसकी कोई रिकॉर्डिंग्स मिल जाएँ। जो तलबा कराम आगे यूनिवर्सिटी में जाएँगे ना, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जो चीज़ें इम्पोर्टेंस जिन चीज़ों को अहमियत हासिल होती है, उनमें से रिसर्च वर्क होता है। तो रिसर्च वर्क आपकी जान होता है, कॉन्फ्रेंसेस आपकी जान होते हैं, इनके मार्क्स होते हैं बाकायदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में आने के बाद तकरीबन 30 के करीब मेरे आर्टिकल, मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल जो अप्रूव्ड हैं, इंटरनेशनल आर्टिकल्स हैं, उनमें शाया हो चुके हैं। जिनमें 14 तो वही मेरे आर्टिकल्स हैं जो मैंने स्टूडेंट्स को काम करवाए। तो उनका रिसर्च आर्टिकल छपा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी रिसर्च है, बच्चों को मैंने काम करवाया और उन्होंने शाया करवाए। इसी तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मौजूदा ज़माने के एतबार से कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। किसी मिसाल कोरोना वायरस आया था, उसमें कॉन्फ्रेंस हुई कि कोरोना वायरस में ख़ानदानी मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है? कोरोना वायरस फैल जाए, बीमारियाँ फैल जाएँ, उन सीरत-उन-नबी की रोशनी में उसका हल क्या है? उसमें हमारी तालीमात क्या हैं? तो इस तरह जिस मौके पर भी कॉन्फ्रेंस हुई, मौका मिला तो मैंने फ़ौरन उस पर कुछ न कुछ लिखा और कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पाकिस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में जा चुका हूँ, वहाँ अपनी तहकीक पेश की है, 30 रिसर्च आर्टिकल शाया हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना काम करेंगे कम है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में कोशिश करते हैं शामिल हों और मुख्तलिफ काम करें, और दूसरे दोस्तों को भी दावत देता हूँ कि वो इसमें हिम्मत परेशान ना हों, डरें ना। एक डर खौफ होता है कि कॉन्फ्रेंस में क्या होगा? हर एक इंसान की अपनी तहकीक, अपनी सोच होती है। वो अपनी सोच से एक चीज़ को जो पेश करता है, ये उसकी रिसर्च है। हुँ। तो ये कोशिश करें तलबा कराम इसमें। माशाल्लाह, बहुत खूब। यानी आपने इस काम को आसान कर दिया, और जो मुश्किल समझने वाले थे, तो उनके लिए आपने मज़ीद राहत आसान कर दी कि कोई मुश्किल नहीं है, कि अपनी एक सोच है, अपनी एक तहकीक है, उसको पेश कर दो। अगला अगर उससे बिल्कुल, इख्तिलाफ़ करता है, तो उसके इख्तिलाफ़ की भी कदर है, और अगर वो इत्तेफ़ाक करता है तो फिर भी ठीक है। तो बिल्कुल। माशाल्लाह, हम लोग डरते ही इसी वज़ह से हैं मेरे ख़्याल से, कि अगर मैं इस बात को करूँगा तो पता नहीं लोग इसको क्या समझेंगे, तो लिहाज़ा करो ही नहीं। तो ये आपने बता दिया कि नहीं, अगर कोई इख्तिलाफ़ करता है, तो वो तो आपके लिए बड़ा काबिल क़द्र है कि आप की तरह का वो दूसरे एंगल से चीज़ों को सोच भी रहा है। तो ये तो एक ब बेहतरीन एक यानी माहौल बन जाएगा उसमें। तो बहुत-बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, कोई रिफ़ाई ख़िदमात के हवाले से भी आप बताएँगे? रिफ़ाई ख़िदमात में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरह इस साल दस्तरख़ान लगाया, पिछले साल दस्तरख़ान लगाया, इस तरह जब सैलाब आया तो सैलाब में तलबा कराम को साथ लेकर उनके लिए राशन इकट्ठे किए और जाकर सैलाब के इलाकों में तक़सीम किए। मेडिसिन, हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ से मेडिसिन ली, डॉक्टर को लिया और जाकर हमने वहाँ पर मरीज़ों का इलाज किया। इसी तरह कोई भी काम हो, पाकिस्तान के मौके पर काम हो, जिस तरह के ये वीक भी हमारी यूनिवर्सिटी में कम्युनिटी सर्विसेज़ का चल रहा है, मुख्तलिफ़ तलबा कराम कम्युनिटी में जाकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। किसी दुकान पर जाते हैं, छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, वहाँ जाकर बताते हैं कि छोटे बच्चों को तालीम दिलवाई जाए। इसी तरह कहीं भी मौका मिलता है तो हम अपनी खिदमत बच्चों को तरबियत देते हैं, बच्चे हमारे साथ मिलते हैं और जाकर काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है और हमारे लिए एक सदका जारिया बनता है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये मदरसा डॉट पीके को आपने कब से जॉइन कर लिया, और यहाँ पे आपकी क्या-क्या ख़िदमात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मरसा डॉट पीके को भी जॉइन किए हुए तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं और बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। और अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ग्रामर पर मुझे लेक्चर्स भी बनाने का मौका मिला, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स अटेंड करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, ग्रूमिंग आई, बहुत सारी क्वालिटीज़ पैदा हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा अदारा चल रहा है, अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाज़े। ये एक बहुत सदका जारिया है और यहाँ अदारे में काम करने वाले मुख़लिस लोग अल्लाह ताला ने दिए हैं, जिसकी वजह से ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियात कर रहा है। इसका राज़ यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए और दिल लगाकर कर रहे हैं, बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं। तो हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, लेकिन मदरसा डॉट पीके ने मुझे भी साथ जोड़ा, उनकी शफ़क़त है और मैंने भी कोशिश की है। आगे फ्यूचर में भी इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इरादे हैं कि अच्छे अंदाज़ से काम किया जाए। डॉक्टर साहब, आखिर में आप क्या पैगाम देंगे अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को, बिलख़ुसूस अहले मदारिस को?
अहले मदारस तलबा कराम से मेरी गुज़ारिश है, पढ़ें, मेहनत करें, आगे कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तदरीस करें, तदरीस से उनमें सलाहियतें पैदा होंगी और तालीम को रोकें ना, तदरीस के साथ अपनी तालीम जारी रखें। अगर तालीम जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, उनका फैज़ बहुत दूर तक पहुँचेगा और एमफ़िल की तरफ जाएँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट ज़्यादा हैं तलबा कराम और सारे के सारे मदारस में सर्वाइव नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में ज़रूरत है, हज़ारों की तादाद में तलबा हैं, उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है, अच्छे स्कॉलर्स की ज़रूरत है, माहिरीन की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात दें और तालीम में आगे जितना मैदान में जाएँगे, तो फिर हम तो बार-बार यही कहते हैं कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, तो हमें इल्म को हासिल करने में कोई परेशान नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला इस पर अजर अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाएँगे। कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। हाँ, डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपकी सारी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए और जज़ाक जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी नसीब फ़रमाए और आपसे इसी तरीके से बड़ी-बड़ी खिदमात लेते रहें। तो आपका बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। जज़ाक नाज़रीन जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे साथ मौजूद डॉक्टर माजिद रशीद साहब और उनकी खिदमात आपने देखी कि एक कम वक़्त के अंदर तालीफ़ात कितनी हो गई माशाल्लाह कॉन्फ्रेंसेस के अंदर देखें, रिसर्च आर्टिकल देखें, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खिदमात देखें, तो माशाल्लाह एक बड़ी एक अज़ीम खिदमात और उनकी हामिल ये एक शख्सियत। तो अल्लाह ताला हमें भी इनकी इन सारी खिदमात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। इंशाल्लाह हम अगले किसी दूसरे इंटरव्यू के अंदर किसी दूसरी शख्सियत को इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। उनकी जितनी भी काविशें होंगी वो आपके सामने रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।